Good morning, everyone. So this is the sum in front of your screen. We will be doing today. Nandan and Parijat were partners in a firm sharing profits and losses in the ratio of 3:2. So there are two partners, Nandan and Parijat, who share profits and losses in the ratio 3:2. There is a there is a partnership firm, and they are the partners in that firm, Nandan and Parijat. They share profits in the ratio 3:2. The firm was following calendar year as their accounting year. The following is the balance sheet of the firm on 31st December 2014. So partners capital में नंदन का कैपिटल 2,40,000 है, परिजात is 2,18,000. Bills payable, creditors for goods and creditors for expenses is the liability side. In the asset side, there is goodwill, land and building, plant and machinery, furniture and fittings, stock in trade, debtors, cash and bank balance. Now on 1st January 2015, that is next year, a new company, NAP Limited, was formed to take over the business of the firm on the following terms. So on 1st January 2015, a new company, NAP Limited, was formed to take over the business of the firm on the following terms. The company would not take over creditor for expenses to the extent of 17,000. So creditor for expenses total 40,000. But 40,000 may, they say that company will not take over the creditor for expenses for the extent of rupees 17,000. तो 17,000 क्रेडिटर फॉर एक्सपेंस नहीं लेके जाएंगे और बाकी टू द एक्सटेंट ऑफ 17,000 नहीं लेके जाएंगे और बाकी का लेके जाएंगे मीन्स 40,000 में से 17,000 का लाइबिलिटी नहीं लेके जाएंगे तो रिमेनिंग 23,000 will be taken. The company would not take over creditor for expenses to the extent of 17,000. So in the balance sheet, creditor for expenses 40,000, but to the extent of 17,000, it will not be taken over by the company. The company will not take over the creditor for expenses to the extent of rupees 17,000. Then assets are to be valued as follows. हमें नया value दिया है assets and liabilities का. गुडविल का नया वैल्यू है 50,000. लैंड एंड बिल्डिंग का नया वैल्यू है 1,68,000. ओल्ड वैल्यू गिवन इन द बैलेंस शीट, न्यू वैल्यू गिवन इन द एडजस्टमेंट. प्लांट एंड मशीनरी 50,000 अबाउ बुक वैल्यू. तो बुक वैल्यू इज 2,10,000. 50,000 और इंक्रीज होने वाला है तो 2,10,000 प्लस 50,000 मीन्स अवर plant and machinery will be 2,60,000, 2,10,000 plus 50,000 because they have told plant and machinery rupees 50,000 above book value. Then we have furniture and fittings to be depreciated by 10%. फर्नीचर एंड फिटिंग का 10% डेप्रिसिएशन निकालना है. 1 लाख इज द अमाउंट, 10% डेप्रिसिएशन निकालेंगे. एंड रुपीज 5,000 ऑफ डेटर्स टू बी ट्रीटेड एज बैड एंड द बैलेंस 5% टू बी ट्रीटेड एज डाउटफुल ऑफ रिकवरी. तो डेटर में देयर इज डाउट, बैड डेट्स, देयर इज बैड डेट्स एंड आरडीडी. परसेंटेज भी दिया है, अमाउंट भी दिया है. डेटर में 5,000 हमें ट्रीट करना है, बैड है तो 20,000, 25,000 में से 5,000 माइनस करेंगे, वी विल गेट 20,000. वो 20,000 में
अगेन 5% हमें डाउटफुल डेट्स निकालना है. सो 20,000 का 5% इज 1,000. सो 5,000 भी डेटर में माइनस करना है, 1,000 भी माइनस करना है, एंड नेट अमाउंट वी विल हैव टू राइट. Cash and bank balance to be taken over in full except to meet the creditor for expenses not taken over by the company. So cash and bank balance is 28,000. Cash and bank balance is 28,000. They say taken over in full. ये पूरा लेना है, except कितना amount छोड़ना है, except to meet the creditor for expenses not taken over by the company. Creditor for expenses not taken over by the company is 17,000. 17,000 हम क्रेडिटर फॉर एक्सपेंस नहीं लेके जाने वाले हैं, तो वो 17,000 को छोड़ के रिमेनिंग फुल कैश विल बी टेकन ओवर बाय द कंपनी. सो द कंपनी विल टेक फुल कैश एक्सेप्ट 28,000 में से 17,000 माइनस करो, रिमेनिंग 11,000 will be taken over by the company. 28,000 minus 17,000, 11,000 will be taken over by the company. Now next point, the purchase consideration is to be satisfied by issuing 20,000 equity shares of rupees 10 each at a premium of 20%. So 20,000 equity shares 10 रुपीज का है, बट 20% प्रीमियम में डिस्चार्ज होगा, सेटिस्फाई होगा. सो प्रीमियम मीन्स मोर देन द फेस वैल्यू. सो 10 का 20% इज 2 रुपीज. 10 का 20% इज 2 रुपीज, मीन्स 10 रुपीज का इक्विटी शेयर 12 रुपीज में देंगे. 20,000 इंटू 12 करेंगे तो वी विल गेट द अमाउंट ऑफ इक्विटी शेयर टू बी गिवन. फिर प्रेफरेंस शेयर का रुपीज दे दिया, रुपीज 1,50,000 by issuing 8% preference shares of 100 each at par. Par means face value. जो फेस वैल्यू 100 है प्रेफरेंस शेयर का, तो 100 रुपीज में शेयर्स इशू हुआ है, एंड द बैलेंस इन द फॉर्म ऑफ 6% डिबेंचर्स एट 5% डिस्काउंट. सो जो बैलेंस अमाउंट है वो कितना है, वो कैसे पता चलेगा? सिर्फ पेमेंट दे हैव नॉट गिवन कंप्लीट इंफॉर्मेशन. कंप्लीट इंफॉर्मेशन कब बोलते? जब इक्विटी शेयर कितना देना है वो क्लियरली दिया है, प्रेफरेंस शेयर्स कितना देना है वो क्लियरली दिया है, बट डिबेंचर्स दे हैव टू बैलेंस इन फॉर्म ऑफ डिबेंचर्स. अगर ये बैलेंस नहीं एंड डिबेंचर्स का भी कैसे कैलकुलेट करना है वो अमाउंट दिया होता, तो हम इसको पेमेंट मेथड बोलते, परचेज कंसिडरेशन बाय पेमेंट मेथड. बट नाउ 3 methods है. लमसम, directly PC is given, but here directly PC is not given, so we cannot find purchase consideration by lump sum method. And payment method भी पूरा payment directly नहीं दिया है, so it is also not payment method. So the third method by which we will find out the purchase consideration is net asset method. So net asset method में assets का revised value दिया है, assets and liabilities का. Yes, so we will find out the PC by net asset method. So what they have asked us to do, pass journal entries in the books of the company and prepare the balance sheet after acquisition. So here in this sum, we have to pass journal entries in the books of the company, and we will have to prepare balance sheet after acquisition. So what we will do, we will prepare journal entries in the books of the company, and we will prepare balance sheet after the conversion or after the acquisition, conversion of partnership into company. So left the first step in conversion, this chapter, like amalgamation,
Our first step is to calculate the PC. So let us start. Assets taken over by the company in revised or book value. Revised or book value. So let us see what all assets are given. सबसे पहले गुडविल, गुडविल का नया वैल्यू है, सो नया वैल्यू लेंगे. गुडविल का न्यू वैल्यू कितना दिया है? गुडविल का न्यू वैल्यू 50,000 दिया है. सो हम न्यू वैल्यू लेंगे, ओल्ड वैल्यू नहीं लेंगे. ओल्ड वैल्यू गिवन वाज 30,000. New value given is 50,000. So we'll take the new value. Land and building also new value is given. So let us take the new value. Land and building new value given 1,68,000. So we will take the new value. Then plant and machinery also new value is given. Plant and machinery rupees 50,000 above book value. So book value is 2,10,000. 50,000 above book value बोला है. So 2,10,000 is the book value. उससे 50,000 add करना है. So plant and machinery is 2,10,000 plus 50,000. They told 50,000 above the book value. Book value is 2,10,000. So the revised value is 2,60,000. Then we have furniture and fitting depreciated by 10%. So let us take furniture and fittings. Furniture and fittings. How much they say? Depreciation करके करना है. So 1 lakh का 10% is 10,000 ना. 1 lakh का 10% is 10,000. So 10,000 माइनस करना पड़ेगा 1 लाख में से. So 1 lakh में से we will minus 10,000. So we will get the PC. So how much it is? 90,000. क्या करना है? Depreciation माइनस करना था. How much depreciation? 10%. So furniture and fittings to be depreciated by 10%. So 1 lakh ka minus 10%. Then we have rupees 5,000 of debtors to be treated as bad, and the balance 5% is to be treated as doubtful of recovery. So debtor is 25,000. उसमें 5,000 is treated as bad. So they say हमें debtors निकालना है, debtors का new value निकालना है. So debtors, how much it is? 25,000 minus 5,000. क्योंकि they have already told debtor में rupees 5,000 of the debtor to be treated as bad, and the balance 5% is to be treated as doubtful of recovery. 5,000 is treated as bad. 25,000 में 5,000 तो पक्का we will not get, and 5% is to be treated as doubtful of recovery. So 25,000 में से 5,000 जाने के बाद remaining amount का कितना परसेंट? 5% हमें बैड ट्रीट करना है. सो रिमेनिंग अमाउंट इज हाउ मच? 20,000 ना. उसमें से माइनस 5%. सो ये हो जाएगा हाउ मच? 19,000. 25,000 का डेटर है, इसमें से दे से 5,000 इज बैड, सो माइनस कर दिया. रिमेनिंग कितना बचता है? 20,000. 25,000 माइनस 5, 20,000. उसमें से 5% इज फर्दर बैड डेट्स. सो 5% ऑफ 20,000 का 5% इज 1,000.
सो वो माइनस कर दिया तो वी गेट, या तुम करो 20,000 माइनस 5%, यू विल गेट द आंसर इन योर कैलसी एस 19,000. डेटर के बाद व्हाट इज देयर? कैश एंड बैंक बैलेंस. They say cash and bank balance to be taken over in full except to meet the creditor for expenses not taken over by the company. Creditor for expense 17,000 है, which we have to not take over. So यहाँ पे what we will do, cash and bank balance. Cash and bank balance is 28,000. उसमें से 17,000 जो creditors for expenses which the company is not going to take over, that has to be paid off. So that we will pay from the cash we have in hand. So 17,000 minus करके remaining cash should be taken over by the company. So remaining cash is 11,000. So we have written all the assets. have we written all the assets? Just check अगर हमने कोई asset को miss कर दिया. यहाँ पे हमने goodwill लिखा, नया value दिया था, land and building लिखा, plant and machinery लिखा, furniture fitting लिखा, but we have not written stock. Stock को का कुछ revised value नहीं है, तो book value लेंगे 65,000. So we'll write here stock. We missed stock. Stock लिखना भूल गए थे, so अभी लिख दिया 65,000. Correct? So we have written all the assets now. सब assets लिख लिया हमने. सब assets लिख लिया. So now let us write the total. ये कितना होता है? Take the total. Total of A. और इसमें से लेस करेंगे बी. इधर लिखेंगे एक्सटर्नल लाइबिलिटीज टेकन ओवर बाय कंपनी in revised or book value. If revised value not given, we will take the book value. So what external we have? हमारे पास कैपिटल को छोड़ के ये 3 एक्सटर्नल लाइबिलिटीज है, तो ये तीनों we will be writing. So amount क्या है? Bills payable 35,000, 25,000, 40,000 for the time being. Let us copy this. फिर देखते हैं किसका भी दूसरा वैल्यू दिया है. Yes, they say creditor for expenses जो है वो to the extent of 17,000 is not to be taken over by the company. The company would not take over creditor for expenses. Creditor for expenses जो है 40,000 है, and company is not going to take 17,000 from 40,000. So यहाँ पे लिखना पड़ेगा 40,000 में 17,000 नहीं लेके जाने वाले हैं. So कितना लेके जाएंगे? How much they will take? Minus करो, you will get 23,000. We will get 23,000. So हमने सारे लाइबिलिटीज को भी लिख लिया. सब इसका टोटल करो. Do the total and see how much we are getting. See how much we are getting. 35 plus 25 plus 23 is 83,000. And here इसका भी टोटल करो. 50 plus 168 plus 260 plus 90 plus 19 plus 11
plus 65,000. Are we getting 6,63,000? So now what we will get, जब इसमें से ये माइनस करेंगे, we will get the purchase consideration. That will be our A minus B. And करो A minus B, 6,63,000 minus 83,000. We get 5,80,000 as our PC. So we have got the PC, we have got the purchase consideration. Now we will find out the discharge of PC, which is given in the question. 20,000 equity share देंगे. So सबसे पहले in equity shares of rupees 10 each at rupees 12. कैसे पता चला 12 रुपीस? प्रीमियम है 20%, 10 रुपीस का 20% निकालो. 10 का 20% is 2. 10 का 20% is 2, means 2 rupees premium. Premium मतलब more than the face value. अगर face value is 10, तो हम प्रीमियम में सेल कर रहे, इशू कर रहे, मतलब हम लोग एक्स्ट्रा पैसा ले रहे. मीन्स 10 का शेयर 12 रुपीस में दे रहे, तो 20,000 into 12 करो, we will get the amount of equity share. 20,000 into 12. So how much we are getting? 20,000 into 12. We are getting, how much we are getting? 20,000 into 12. We are getting 2,40,000. 2,40,000. सेम वे इक्विटी शेयर्स के बाद क्या दे रहे? रुपीस 1,50,000 का 8% प्रेफरेंस शेयर 100 रुपीस का पार में दे रहे. 8% प्रेफरेंस शेयर. सो इन 8% preference shares of rupees 100 each at par. प्रीमियम नहीं है, पार. पार मतलब 100 रुपीस का 100 रुपीस में, ये तो ऑलरेडी दिया है. that rupees 1,50,000. 100 रुपीस का 100 दिया ना, 100 रुपीस each at par. Then we have balance in form of 6% debentures at 5% discount. तो बैलेंस किस पे है? बाकी का जो बचा हुआ पैसा, इट इज इन 6% डिबेंचर्स. कितने का डिबेंचर्स है? 6% डिबेंचर, 5% डिस्काउंट. तो नॉर्मली डिबेंचर 100 रुपीस का होता है, ऑफ रुपीस 100. लेट अस अस्यूम इट टू बी 100 बिकॉज फेस वैल्यू नहीं दिया. एट 5% डिस्काउंट. 100 का 5% इज 5 रुपीस. 100 का 5% इज 5 रुपीस ना, मतलब 100 में 5 रुपए का डिस्काउंट है. तो एट रुपीस 95 कितना है? ये तो बैलेंस है, बैलेंसिंग फिगर है. So total PC कितना है? How much is the total purchase consideration? Total purchase consideration we know is 5,80,000. So how much will be the balancing figure? Balancing figure will be 1,90,000. ये हमारा बैलेंसिंग फिगर है. तब ये नंबर ऑफ डिबेंचर्स कितना रहेगा? यहाँ पे हमें वो भी चाहिए. नंबर ऑफ डिबेंचर कितना रहेगा? 1,90,000 डिवाइड बाय 95 करो, हमें नंबर ऑफ डिबेंचर्स आ जाएगा. 1,90,000 डिवाइड बाय 95 मीन्स इट इज 2,000 डिबेंचर्स.
of ₹100 each. जो हमने 95 रुपीस में दिया मीन्स 5 रुपीस का इट इज अ डिस्काउंट, 5% का इट इज अ डिस्काउंट दैट वी ऑलरेडी नो. ये भी हो गया. अब ये लोग ने क्या पूछा है हमें, ये लोग ने हमें दे हैव आस्क्ड अस टू प्रिपेयर जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ द कंपनी. सो लेट अस प्रिपेयर द जर्नल एंट्रीज. सो let us insert the column serial number, particular, LF, debit, credit. Serial number, LF. So serial number, because date so we don't know. Particulars, LF, debit rupees and credit rupees. फर्स्ट वन हम पहला जर्नल एंट्री कंपनी में इन द बुक्स ऑफ कंपनी इन द नेम ऑफ द कंपनी नैप लिमिटेड. इन द कंपनी चाहिए तो ब्रैकेट में लेट अस राइट नैप लिमिटेड. सो सबसे पहला एंट्री विल बी बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिट to what is the name of the vendor company. vendor company का नाम क्या है, परी पार्टनरशिप है ना, नंदन एंड परिजात. तो उसको नाम पार्टनरशिप का नाम नहीं है तो वेंडर फॉर्म लिख देती हूँ. ब्रैकेट में चाहिए तो नंदन एंड परिजात. इसमें हमेशा वी विल राइट द अमाउंट ऑफ पीसी. बिजनेस कितने में परचेस हुआ है, जितना हमने परचेस कंसिडरेशन पे किया. तो बीइंग बिजनेस परचेस, तो फर्स्ट एंट्री बीइंग बिजनेस परचेस्ड. इसके बाद टेक ओवर ऑफ असेट्स एंड लाइबिलिटीज. सो कौन सा असेट है हमारे पास, लुक एट द पीसी. पीसी में देखेंगे हमारे पास क्या क्या है. सो सेम वे में हम लोग लिख लेंगे. तो चाहिए तो वी कैन जस्ट डू अ कॉपी हियर. फिर वी डोंट वांट लाइक दिस. तो यहाँ पे गुडविल अकाउंट डेबिट, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट. प्लांट एंड मशीनरी का ये वर्किंग नहीं चाहिए हमें, अकाउंट डेबिट. फर्नीचर एंड फिटिंग का भी अकाउंट डेबिट. डेटर्स ऑल्सो अकाउंट डेबिट. अकाउंट डेबिट. स्टॉक अकाउंट डेबिट. now इसका अमाउंट्स क्या है ये हमें यहाँ से मिल जाएगा. सो अब क्या करना है, लाइबिलिटीज लिखना है जो टेक ओवर हुआ न्यू कंपनी ने जो लिया है. बिल्स पेबल टू क्रेडिटर फॉर टू क्रेडिटर्स. दो टाइप का क्रेडिटर्स है ना, क्रेडिटर फॉर गुड्स एंड क्रेडिटर फॉर एक्सपेंसेस. फॉर गुड्स एंड टू क्रेडिटर फॉर एक्सपेंसेस. creditor for expenses. How much is the amount? We will take from the PC. So here we will write. So इसके बाद what we will do, ये जो business purchase is in the debit, business purchase is in the debit,
इसको भी हम लोग क्रेडिट में लिखते हैं, कैंसिल करते हैं। 2 बिजनेस परचेस अकाउंट, हाउ मच इट इज 5,80,000। अब जब हम ये करेंगे ना, वी विल सी दैट हमारा जो डेबिट साइड है विल बी इक्वल टू द क्रेडिट साइड। जो हमारा डेबिट साइड का टोटल है, जस्ट क्रॉस चेक, ये टैली होगा। ये सबको ऐड करेंगे और इससे सब चारों को ऐड करेंगे, वी विल गेट द सेम अमाउंट। बिकॉज यहाँ पे ऑलरेडी हमारे पास गुडविल है, ऑलरेडी वी हैव द गुडविल। अगर ये गुडविल नहीं दिया होता क्वेश्चन में, सो हमारा जब बैलेंसिंग फिगर करते तो हमें ये गुडविल का अमाउंट आ जाता, या अगर क्रेडिट में डिफरेंस आया तो इट इज कैपिटल रिजर्व। आई हैड टोल्ड यू लास्ट टाइम, बीइंग assets and liabilities transferred. Being assets and liabilities transferred. When we will check, we will see that हमारा ये side, debit side, जो भी assets लिया है, will be equal to the liabilities because PC हमने इधर नीचे लिखा है. The next one is the next entry, जिसमें जो अभी देखा हमने क्या, what we have seen that this vendor firm, business purchase को तो कैंसिल कर दिया, अब ये वेंडर फर्म को भी कैंसिल करते हैं। सो इसको भी डेबिट में लिखते हैं, क्रेडिट में था। नाउ वी विल राइट इन द डेबिट टू क्या अमाउंट 5,80,000। इसमें हम डिस्चार्ज ऑफ पीसी लिखेंगे। हमने पीसी कैसे डिस्चार्ज किया, इक्विटी शेयर कैपिटल। सो हमने इक्विटी दिया, कंपनी ने क्या दिया, इक्विटी शेयर कैपिटल दिया। एंड व्हाट इज गिवन, 8% preference share, 6% debenture. So that is very important. We'll write here 2 8% preference share capital to 6% debentures. So now एक और चीज इंपॉर्टेंट है, हियर हमने जब हम प्रीमियम में कभी भी कुछ शेयर्स या डिबेंचर्स इशू करते हैं तो प्रीमियम का पैसा हम एक स्पेशल रिजर्व होता है उसमें ट्रांसफर करते हैं, विच इज नोन एज टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। और अगर हम कभी डिस्काउंट में शेयर्स एंड डिबेंचर कुछ भी डिस्काउंट में देते हैं तो हम वो डिस्काउंट को यहाँ डेबिट साइड में दिखाते हैं, दैट इज discount on issue of shares or debenture, but here we know it is because of debentures, issue of debentures account debit. कितना, how much discount we have given, 2,000 debentures पे 5 रुपीस का डिस्काउंट दिया है। 2,000 डिबेंचर्स पे 5 रुपीस का डिस्काउंट दिया है। यहाँ पे देखो 6% डिबेंचर 100 रुपीस का हमने 95 रुपीस में इशू किया, मीन्स देयर इज अ डिस्काउंट ऑफ 5 रुपीस, हमें लॉस हुआ है। हमने 100 रुपीस का चीज 95 रुपीस में दिया, 5 रुपीस का डिस्काउंट, मीन्स इट इज अ लॉस। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, डेबिट में दिखाया डिस्काउंट। So how much is the discount? 2,000 into 5, it is 10,000. Same way, equity shares जो है वो 10 रुपीस का है, बट हमने 12 रुपीस में दिया, मीन्स 2 रुपीस का प्रीमियम। प्रीमियम मीन्स प्रॉफिट,
एंड प्रीमियम का पैसा हम सिक्योरिटीज प्रीमियम में सेव करते। सो 20,000 शेयर्स पे 2 रुपीज का प्रॉफिट। सो यहाँ पे वी विल शो 20,000 शेयर्स पे 2 रुपीज का प्रॉफिट, विच इज इक्वल टू हाउ मच? 20 into 2 is 40,000। अब क्या करेंगे? अब डिबेंचर्स कितना था? 2,000 डिबेंचर्स 100 रुपीज का। डिबेंचर शेयर सब हमेशा फेस वैल्यू पे ही रिकॉर्ड करना चाहिए। हम यहाँ पे दिखाया ना ऊपर 5 रुपीज का डिस्काउंट हुआ है। सो हियर व्हेन वी आर रिकॉर्डिंग वी हैव टू शो as in the face value, and this debentures they have already, debentures के बाद preference share 1,50,000 was given in the question। 1,50,000 100 रुपीज का डिबेंचर है, मीन्स 1500 into 100। यहाँ पे हमें यूनिट्स नहीं दिया तो, बट दिया है 1 प्रेफरेंस शेयर इज ऑफ 100 रुपीज। सो 1,50,000 डिवाइड बाय 100 किया तो ऑटोमेटिकली वी विल कम टू नो दैट हाउ मेनी नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स आर देयर। इक्विटी शेयर्स वी नो 20,000 इक्विटी शेयर है, एंड एक इक्विटी शेयर का फेस वैल्यू 10 है, बट हमने 12 रुपीज में दिया, 2 रुपीज हमने अलग से बताया सिक्योरिटी प्रीमियम। So here this one also we will show 2 lakhs, 20,000 into 10। अब इसको टैली करेंगे ना तो 5,90,000, इसको भी टोटल करोगे तो इट विल कम 5,90,000 being PC settled, being PC settled। इसके बाद वन लास्ट एंट्री दैट इज फॉर, हम लोग के पास यहाँ पे दोनों हैं, वी हैव बोथ हियर, बोथ, दैट इज डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर एंड वी हैव प्रॉफिट सिक्योरिटी प्रीमियम। सो हम क्या करते हैं, जो कम वाला चीज है दोनों में से उसको राइट ऑफ करते हैं। प्रीमियम 40,000 है, डिस्काउंट 10,000 है, तो हम प्रॉफिट में से ये लॉस को राइट ऑफ करते हैं। वी हैव 40,000 का प्रॉफिट क्योंकि हमने इक्विटी शेयर 10 रुपीज का 12 रुपीज में इशू किया, तो 2 रुपीज का हमें प्रॉफिट हुआ। 20,000 इक्विटी शेयर पे 2 रुपीज का प्रॉफिट इज 40,000, बट हमने 2,000 डिबेंचर्स 95 रुपीज में सेल इशू किया, सो 5 रुपीज का लॉस हुआ, तो राइट ऑफ करते हैं। तो ये जो सिक्योरिटी प्रीमियम है ये क्रेडिट में है, इसको कैंसिल करेंगे तो इट विल कम इन द डेबिट, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट। 2, ये जो डिस्काउंट इज इन द डेबिट, अभी हम कैंसिल करेंगे, सो इट विल कम इन द क्रेडिट। सो डेबिट का ऑपोजिट क्रेडिट, एंड हाउ मच इज द अमाउंट? लॉस कितना है? 10,000। तो ये प्रॉफिट में से जो 40,000 का प्रॉफिट है उसमें से हमने 10,000 यूज कर लिया और ये लॉस को हमने राइट ऑफ कर दिया। बीइंग डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स adjusted with securities premium, हमने इसको एडजस्ट कर लिया। दिस वाज द लास्ट एंट्री। नाउ व्हाट दे हैव आल्सो आस्क्ड अस टू प्रिपेयर इज बैलेंस शीट। अभी दे हैव आस्क्ड अस टू प्रिपेयर बैलेंस शीट as on what is the date of conversion। कन्वर्जन का डेट क्या दिया? 1 जनवरी 2015 न्यू कंपनी वाज फॉर्म्ड, सो आई विल राइट दिस दैट डेट ओनली, नहीं तो डोंट राइट एनी डेट, दैट इज आल्सो ओके। जनवरी 2015, इज इट करेक्ट? यस, जनवरी 2015, and the name of the company is NAP Limited।
तो ये ऐसे लिख लेते हैं. नाउ व्हाट वी राइट हियर इज, हम जब कंपनी का बैलेंस शीट बनाते हैं तो हम लिखते हैं इक्विटी एंड liabilities. We have done sums, even more some we have done previous sums on balance sheet. So हम बोलते हैं इसको इक्विटी एंड लाइबिलिटी. एंड इक्विटी का मीनिंग होता है शेयर होल्डर्स फंड. और शेयर होल्डर्स का फंड मतलब उनका शेयर कैपिटल एंड उनका रिजर्व्स एंड surplus. Now when we say equity and liability, there is equity which refers to shareholders fund, and shareholder fund में क्या दो चीज होता है, share capital and reserves and surplus. तो नोट नंबर 1 इधर बन जाएगा हमारा. नोट नंबर 1 is share capital. We have to show share capital में क्या है. शेयर कैपिटल में इक्विटी शेयर कैपिटल है और हमारे पास 8% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है. प्रेफरेंस शेयर कैपिटल. सो हाउ मच इक्विटी कैपिटल वी हैव? 2 lakh. How much equity share capital we have? Look in the journal entry. 2 lakh. Preference share 1,50,000. चाहिए तो हम नंबर्स भी लिख सकते थे कि कितना नंबर्स है. 20,000 इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच, 1,500 इक्विटी प्रेफरेंस शेयर ऑफ 100 ईच. But I am preferring to directly write this way also you can do, directly write the amount. So पूरा टोटल होता है 3,50,000. So ये हमें मिला 3,50,000. रिजर्व्स क्या है चेक करो. कोई रिजर्व्स है हमारे पास? डू वी हैव एनी रिजर्व्स? नॉर्मली जब कन्वर्जन होता है तो पार्टनर्स कैपिटल में जितना भी रिजर्व होता है वो पार्टनर्स में डिवाइड हो जाता है. तो न्यू कंपनी में अगर कोई रिजर्व है तो सेकेंड एंट्री में अगर कैपिटल रिजर्व आया मींस व्हाट, द डेबिट इज हैवी एंड क्रेडिट अमाउंट इज लेस. तो इधर 2 कैपिटल रिजर्व बैलेंसिंग फिगर आते हैं. या तो गुडविल डेबिट, अगर क्रेडिट ज्यादा है तो डेबिट में गुडविल आता है, और अगर डेबिट का अमाउंट ज्यादा है तो क्रेडिट में कैपिटल रिजर्व, दैट इज अ रिजर्व. वन मोर रिजर्व इज देयर. अगर हमने कोई भी हमारा शेयर्स या डिबेंचर प्रीमियम में इशू किया तो हमें हमारे पास सिक्योरिटी प्रीमियम का रिजर्व आता है. तो यहाँ पे 40,000 था, 10,000 जो है वो कम हो गया. 40,000 का रिजर्व था, 10,000 डिस्काउंट को एडजस्ट करने में यूज हो गया. सो रिजर्व्स एंड सरप्लस में वी हैव ओनली वन रिजर्व, सिक्योरिटीज प्रीमियम, which is how much? 40,000 minus 10,000, which is equal to 30,000, which is equal to 30,000. इसके बाद हमारे पास लाइबिलिटी है. सी इक्विटी मीन शेयर होल्डर फंड जिसमें शेयर कैपिटल एंड रिजर्व्स एंड सरप्लस आता है. नाउ लाइबिलिटी मीन्स देयर आर 2 टाइप ऑफ लाइबिलिटी. non-current liability and current liability. तो नॉन करंट लाइबिलिटी में कुछ डिबेंचर, बैंक लोन कुछ रहेगा. नॉन करंट लाइबिलिटी मीन्स लाइबिलिटी विच इज देयर फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम. सो डू वी हैव एनी लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स? देखो हमारे पास डिबेंचर है 2 लाख, दैट इज लॉन्ग टर्म बोरोइंग. तो इधर ब्रैकेट में हमने लिखा 6%. इधर लिखते हैं 6% डिबेंचर्स. सो इधर वी कैन राइट 6% डिबेंचर is 2 lakhs
और कोई हमारे पास बैंक लोन और कोई लाइबिलिटी नहीं है विच इज फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, you have only debentures. So then we go to C. C में हमारे पास स्मॉल पीरियड का करंट लाइबिलिटी है. करंट लाइबिलिटी में हम लिखते हैं ट्रेड पेबल मीन्स क्रेडिटर्स. तो हमारे पास क्रेडिटर्स है. बिल्स पेबल, ट्रेड पेबल में हम बिल पेबल, क्रेडिटर फॉर गुड्स एंड क्रेडिटर फॉर एक्सपेंस सबको ऐड करना पड़ेगा. सो लेट अस गो टू दिस. इसको हम नोट नंबर 2 बोलते हैं. एंड इधर लिखते हैं ट्रेड पेबल्स. ट्रेड पेबल्स में ये सबको ऐड करना पड़ेगा. बिल्स पेबल, creditor for goods and creditor for expenses. Creditors for expenses. How much is the amount? 35, 25, 23. So 35, 25 and 23,000. ये सबको ऐड करते हैं. हाउ मच इट इज कमिंग? इट इज कमिंग टू 83,000. सो वी कैन राइट हियर 83,000. We'll write here 83,000. एंड इसके बाद हमारा लाइबिलिटी हो गया. इसका टोटल ले सकते हैं ए. नेक्स्ट वी गो टू बी, दैट इज असेट्स. असेट साइड. असेट साइड में वी राइट नॉन करंट असेट. नॉन करंट असेट में आता है फिक्स असेट जिसको हम बोलते हैं प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट. इसको हम बोलते हैं प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट. प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट में 2 टाइप्स है, टैंजिबल एंड इनटैंजिबल. तो इनटैंजिबल में ओनली वन थिंग इज देयर, गुडविल. इंटेंजिबल एसेट में क्या है हमारे पास? गुडविल है ना 50,000. सो वो डायरेक्टली वी कैन राइट 50,000. अब टैंजिबल के लिए विल अगेन हैव टू मेक अ नोट बिकॉज मोर देन वन इज देयर. टैंजिबल एसेट्स, आई होप यू नो व्हाट इज टैंजिबल एसेट्स. सो हमारे पास टैंजिबल एसेट्स में मोर देन वन एसेट है. कौन सा है? लेट अस सी. वी हैव लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी एंड फर्नीचर एंड फिटिंग्स. ये सब these all are fixed asset, tangible assets. fixed tangible assets चूंकि we can see, touch and feel. land, ये तीनों को कॉपी करते हैं. डेबिट सब नहीं चाहिए. इसका अमाउंट देखते हैं कितना है. how much is the amount? Let us see. 1,68,000, 2,60,000 and 90. So let us write 1,68,000, 2,60,000, 2,60,000 and 90,000. तो ये तीनों को ऐड करो. हाउ मच इट इज कमिंग? इट इज कमिंग टू 5,18,000. इट इज कमिंग टू 5,18,000. So we'll write here. 1 minute.
5,18,000 and we got this also 5,18,000. इसके बाद अभी हमारे पास है बी, जिसको बोलेंगे हम करंट असेट. वी डोंट हैव एनी इन्वेस्टमेंट्स, तो करंट असेट में इन्वेंट्रीज है, इन्वेंट्रीज जिसको हम स्टॉक बोलते हैं. बी में ट्रेड रिसीवेबल जिसको हम डेटर्स एंड बिल्स पेएबल बोलते हैं. नेक्स्ट कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, जो कैश एंड बैंक बैलेंस है वो हम इधर लिखते हैं. तो इन्वेंट्री हाउ मच वी हैव, स्टॉक 65,000, कैश एंड कैश बैलेंस 11,000, debtor 19,000, 65. So we can write here inventory हम यहाँ पे इन्वेंट्री हमारे पास 65,000 है. ट्रेड रिसीवेबल मतलब डेटर्स, डेटर्स हमारे पास 19,000 है. हमने देखा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट हमारे पास 11,000 है. सो इसके साथ वी कैन राइट द टोटल. टोटल बाय मिस्टेक मैंने यहाँ पे ऐसे ए लिखा था. टोटल एंड टोटल. नाउ टेक द टोटल ऑफ द बैलेंस शीट एंड सी वेदर इट इज टैलिंग. हाउ मच इट इज कमिंग, 6,63,000. It is coming 6,63,000. With this, our sum is done. Thank you very much, everyone.